Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing great. So, I'll continue this series of lectures. As you know, that it is related to the PMS general knowledge questions, which are taken from the past papers of PMS. And I had already solved the previous papers like 2005, 2004, 2009, 2012, and 2015. This paper is of 2016, and we had already solved the questions up to 50 in our last lecture. So in today's class, I'll continue this lecture from question number 51. So yeah, without wasting your time, let's start our today's class. But before starting my lecture, I must say that if you are new in my channel, so please don't forget to hit the like button, subscribe my channel, and share this content with your friends because it keeps me motivated. Yeah. And don't forget to press the bell icon so that you people will never miss any lecture, right? So yeah, let's start our today's class. Which part of the brain contains centers for the control of respiration, heartbeat, and the blood pressure? ओके सो वो कौन सा ब्रेन का हिस्सा है जो कंट्रोल करता है, राइट, रेस्पिरेशन को और हार्ट बीट को या ब्लड प्रेशर को? सो द ऑप्शंस आर मेड्यूला, ऑब्लो ऑब्लोंग oblongata, okay, and the other option is medulla. The option C is cerebellum and cerebrum. So this option, medulla oblongata, is the correct option, right? This is the correct option, okay? Option A is correct option. The next question is the structure in a cell which contains the genes is called. The options are genetics, option B is saliva, option C is marrow, and option D is chromosomes. So the correct option is chromosomes. ये एक thread like structure होता है जो content करता है genes. Okay. The next question is who coined the term gene? So option C, William Johns, is the correct option, right? Other options like John Dalton, Dalton Gene, Andrew Fleming are wrong options. Only option C is the correct option. The next question is vitamin A is essential for. It is essential for night blindness, right? It prevents preventing night blindness, right? It prevents night blindness. So vitamin A जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस के लिए जो है वो हमें हेल्प आउट करता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो फिर रात को दिखा ही नहीं देता। Which vitamin prevents hemorrhaging? Okay, so this is vitamin K. Basically ये blood clotting में जो है वो help out करता है vitamin K, right? So other options like B1, E, B12 are wrong options. Okay. Uh, Only option D is the correct option. Excuse me. Yes, the next question is how much blood does a normal adult person have in the body? Okay. So the normal person have a normal adult. They are talking about the adult person, okay? So the normal adult must have the blood up to 4 to 5 liters. Okay, normal blood. Other options like 6 to 7 liters, 2 to 3 liters, and 3 to 4 liters are wrong options. Only option C is correct option. Hydrochloric acid is necessary for easy digestion of. Okay, the options are fats. Option B is carbohydrates.
Option C is enzymes, and option D is proteins. So proteins is the correct option. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नेसेसरी फॉर द इजी डाइजेशन, राइट, ऑफ प्रोटीन्स। जो आप प्रोटीन्स खा रहे होते हैं उनकी डाइजेशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही ज्यादा हेल्प आउट करता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन इज प्रोवाइडेड बाय द सनलाइट। तो ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, सनलाइट, विटामिन डी। ओके, vitamin D is correct option. The next question is when was HIV identified? So HIV was identified in 1983. Okay, HIV was identified in 1983. Which disease causes the difficulty in breathing? So अगर किसी को एस्थमा है तो वो बंदा सही से ब्रीथ नहीं कर पाता। एनीमिया तो आपको पता है, ब्लड की कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया कहते हैं। ये डिफरेंट डिजीजेस हैं। ओके, सो ये रॉन्ग ऑप्शन है ना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस यूजुअली फाउंड इन मेल्स। अच्छा, ये मेल्स में खास करके ये कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी पाई जाती है, तो वो कौन सा कलर है जिसमें वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। सो दे हैव द डिफिकल्टी इन डिस्टिंग्विशिंग रेड फ्रॉम द ग्रीन, एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। वो रेड और ग्रीन में नहीं कर पाते, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। अदर ऑप्शंस लाइक डिफिकल्टी इन डिस्टिंग्विशिंग रेड फ्रॉम ब्लू or red from orange and blue from black, these are wrong options। ये रेड एंड ग्रीन होता है जिसमें ये नहीं कर पाते डिस्टिंग्विश, जिनको ये डिजीज होता है कलर ब्लाइंडनेस का। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजीज विच ट्रेवल्स इटसेल्फ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो वो एक एयरबोर्न डिजीज होता है। ओके, जो मतलब प्लेस टू प्लेस जो है वो ट्रेवल कर रहा होता है, राइट। अदर ऑप्शंस लाइक एंडेमिक, epidemic and infection are wrong options. The next question is what is H5N1? So it is virus. It is virus. Okay, what is H5N1? It is virus. Fungi, vaccine and bacteria, uh, ये सारे wrong options हैं, like fungi और ये vaccine and bacteria are wrong options. Only virus is the correct option. H5N1 is a virus. Objects having the same size, shape and the measurement are. So the options are similar. Option B is congruent. Option C is symmetrical. Option D is variant. So option B, congruent, is the correct option. Having same size, same shape and measurement. ये तीनों चीजें उनकी सेम होती हैं तो उसे हम कहते हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। ओके, a line passing through a circle away from its center is called, it is called chord। ओके, कॉर्ड तो आपको पता है ना, कि जो हम लोग सर्कल बना रहे होते हैं तो वो एक लाइन बना रहे होते हैं ना, ए- उस पॉइंट से सर्कल तक, राइट, तो उसे हम कॉर्ड कहते हैं, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the sum of angles in the triangle। So it is also very repeated question। sum of angles in a triangle पूछ रहा है, तो वो होती है 180, राइट, 180 डिग्री होता है। ओके, other options like 360, 280 and 90 are wrong options। Okay, 90 degrees, these are the wrong options according to the Pythagoras theorem। when the hypotenuse is a c, then if the hypotenuse is a c, तो hypotenuse अगर c है तो वो क्या हो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, क्योंकि इस साइड पे हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर एंड बेस होता है। ओके, तो ये इक्वेशन सही है, ये इक्वेशन भी आप देखेंगे रॉन्ग है, राइट, क्योंकि इसमें सबको प्लस किया हुआ है और
हाइपोटेनस को इधर नहीं किया हुआ इन्होंने, और इसमें स्क्वायर मिसिंग है और इसमें माइनस है, तो ये इसलिए गलत है। ओनली ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू polygons आर सिमिलर इफ सो इसमें जो है वो ऑप्शन ए जो है वो ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ऑप्शन बी इज ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो ए एंड बी इसमें दोनों ही सही हैं, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ trapezium is, so the area of trapezium is 1 upon 2 multiplied by sum of parallel sides multiplied by height. So this is the area of trapezium, right? Other options are wrong options. Only option C is the correct option, right? Option C is correct option. The next MCQs is the volume of a sphere is, okay, the volume of a sphere is, the next question is the volume of a sphere is. So this is the correct option. Option A is correct option. Okay, the other options are wrong options. If we'll talk about the next MCQs, then the next MCQs is midterm breaking is applied to. So it is applied to quadratic equation. Okay, other options like linear equation, perfect squares, polynomial functions are wrong options. Only option 71 is option A is correct, and right, the correct option of question 71 is option A, quadratic equation. What is the next term for the sequence? Okay, so what is the next term? अब इसको जो है वो आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये मैंने सॉल्व किया था, तो इसका आंसर जो था वो 2 था। लाइक अदर ऑप्शंस आर लाइक 3, 1 एंड 4 आर रॉन्ग ऑप्शंस। ओनली ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज 0.004 मल्टीप्लाई बाय 0.5। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 0.002, राइट। The next question is, in the equation of a straight line, what does the letter C represents? Straight line, जब इस equation बनाते हैं, in the equation of a straight line, what does the letter C represent? So it represents y-intercept, right? It represents y-intercept. Other options like gradient and x-intercept and y coordinate are wrong options. The next question is, when 73 is added to 89 and the amount is doubled, it gives the same result as the square of 18. What is the answer? So I had already solved this question first, and the answer was 162, right? You can solve it by yourself too. The next question is, what devices accept data from outside the computer and transfer it into the CPU? So आउटसाइड द कंप्यूटर जो उनको जो है वो डिवाइसेस एक्सेप्ट करते हैं डेटा, वो इनपुट डिवाइसेस से एक्सेप्ट करते हैं। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच shortcut key is used to insert a new slide in the PowerPoint presentation? So वो यूज होती है Ctrl M, right? Other options are wrong options. Only option C is the correct option. Okay, the next question is, spam or fraudulent emails are also called. आपको पता है कि इनको हम जंक मेल भी कहते हैं। Okay. Other options are also wrong options. Only option B is the correct option. The next question is, who was the
इन्वेंटर ऑफ माउस, तो ये आपको पता है, डॉगलस जो थे वो इन्वेंटर थे माउस के। अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शन। ये चार्ल्स बेबेज का तो आपको पता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर है। ओके, विच इज द लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी ऑफ द कंप्यूटर? तो एचपी को माना जाता है कि ये जो है वो लार्जेस्ट कंपनी है कंप्यूटर्स की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ conventional design of pre-released software, right? So beta is the conventional designation of pre-released software. Okay. The next question is the temporary storage place for information in a computer is called. तो temporary storage के लिए जो है वो बफर जो है वो उसको वर्ड यूज करते हैं हम। अदर ऑप्शंस लाइक डेटा रिकॉर्डर, बाइनरी फाइल एंड बैकअप फाइल आर रॉन्ग ऑप्शंस। क्वेश्चन आप फिर से पढ़ लें कि टेम्पररी स्टोरेज प्लेस फॉर इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर्स में टेम्पररी स्टोरेज के प्लेस का पूछा गया है। वैसे सवाल पूछते हैं कि कौन सी मेमोरी होती है रोम एंड रैम में से जो टेम्पररी है और कौन सी परमानेंट है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरीज वोलाटाइल होती है ये, राइट, आपको पता है। बट इसमें स्टोरेज प्लेस का पूछा गया है तो वो बफर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिवेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट वाज पास्ड इन पाकिस्तान इन द ईयर ऑफ, सो द ऑप्शंस आर 2013, 2014, 2015 या 2016। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2016। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द लास्ट सेंसस हेल्ड इन पाकिस्तान? सो पहली बार लास्ट का पूछा गया है ना, मतलब ये अगर 2016 का पेपर है तो बोल रहे हैं कि मतलब आखिरी जो हुई है सेंसस वो कब हुई है, तो 1998 जो है वो इसमें हुई थी लास्ट सेंसस। अभी रिसेंटली भी हुई है। अ, अभी आपसे वो ही पूछेगा क्योंकि ये तो उस टाइम का पेपर है तो उस टाइम के क्वेश्चंस हैं, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेकंड पास। Miakand hai, I think it is a Miakand Pass connects Peshawar with. So it connects Peshawar with Chitral. Other options like Sawat, Gilgit, and there are wrong options. Only option D is the correct option. Chitral, headquarter of Arab League is. So Arab League का headquarter जो है अरब लीग आप याद रख लें, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कायरो में है, कायरो। Other options like Tunisia, Riyadh, and Tehran are wrong options. Only option B is the correct option. The next question is judicial body of UN is called. जो जुडिशियल बॉडी होती है यूनाइटेड नेशंस की उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ओके, अदर ऑप्शंस लाइक जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आर रॉन्ग ऑप्शंस। COP 22 and 22nd Conference of Parties of UN Framework Convention on Climate Change was held in 2016. ओके, COP 22 के बारे में पूछ रहे हैं। 22nd कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो ये 2016 में जो हेल्ड हुई थी उसके बारे में पूछा गया है। सो मराकश में हुई थी वो, राइट। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अदर ऑप्शंस लाइक मोरक्को, न्यूयॉर्क, पेरिस आर रॉन्ग ऑप्शंस। ऑप्शन बी मराकश इज द राइट ऑप्शन। Which country has the largest resources of crude oil? तो क्रूड ऑयल के तो पता है सबको, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन की जो है वो लार्जेस्ट रिसोर्सेज क्रूड ऑयल के सऊदी अरेबिया में है। अदर ऑप्शंस लाइक यूएसए, रशिया एंड कुवैत आर रॉन्ग ऑप्शंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड इज। हाईएस्ट बैटलफील्ड, हाइट मतलब हाईएस्ट पूछ रहे हैं कि हाइट में हाईएस्ट।
यहाँ वैसे ही हाईएस्ट पूछ रहे होंगे, हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, तो सियाचिन ग्लेशियर्स है, सियाचिन, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट, समर ओलंपिक्स के बारे में पूछा गया है। फॉर द ईयर 2022 विल बी हेल्ड इन, अब 2020 के बारे में, सॉरी इट्स 2020, राइट। सो ये टोक्यो में हुआ था समर ओलंपिक 2020, राइट। टोक्यो में हुआ था, जापान में। बीजिंग, हनोई एंड एथेंस आर रॉन्ग ऑप्शंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कंट्रीज टोटल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर नोन एज एक्सटर्नल डेब्ट। डेब्ट कहते हैं इसे, डेब्ट कहते हैं कर्जे को, राइट। एक्सटर्नल डेब्ट, जो कर्जा होता है किसी भी मुल्क पे, बाहर से जो हम लेते हैं, लोन लेते हैं, फिर वो वर्ल्ड बैंक से लें, आईएमएफ से लें, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लें, राइट, या फिर चाइना से लें, या सऊदी अरेबिया से लें, तो वो ओवरऑल हमारा कर्जा होता है। या हमारी अपनी बैंक बैंक से होती हैं, उनसे लें, तो उसे हम कहते हैं कर्जा। पर ये एक्सटर्नल की बात हो रही है, हमारी अपनी बैंक्स की नहीं हो रही है, एक्सटर्नल डेब्ट की बात हो रही है, राइट। ब्रेग्जिट रेफरेंडम वाज हेल्ड इन, तो ब्रेग्जिट रेफरेंडम कब हुआ था? ऑप्शंस दिए गए हैं, लाइक अक्टूबर 22 2016, August 23 2016, एंड June 23 2016 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शंस। तो आप ये याद रखें, ये रेफरेंडम हुआ था, जून में हुआ था, 23 जून थी, और 2016 था, ओके। विच पॉलिटिकल पार्टी डज यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट बिलोंग टू? तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, विच पॉलिटिकल पार्टी डज यूएस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बिलोंग्स टू? तो वो रिपब्लिकन्स, रिपब्लिकन्स की पार्टी थी, राइट। Other options like Labor, Democratic, and Liberals are wrong options. Option D is the correct option. The term trade to diplomacy is used for. तो ये ट्रेड टू डिप्लोमेसी जो है वो, ऑप्शन बी अगर आप देखेंगे, मैनेजिंग रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज यूजिंग अनऑफिशियल चैनल्स। ये ऑफिशियली नहीं मिलते और ऑफिशियल चैनल्स भी नहीं यूज करते, अनऑफिशियली ये होता है, ओके। दो कंट्रीज होती हैं जो मैनेज करती हैं अपने रिलेशंस, ओके। अब ये देखें, इसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूएस ने ईरान पे जो है वो सैंक्शंस लगाई हुई हैं, तो यूएस जो है, ईरान जो है वो रशिया के साथ, चाइना के साथ अपना जो है वो कर रहा होता है ना, ट्रेड कर रहा होता है। बट वो ऐसे कर रहे होते हैं कि पता नहीं चलता, तो कर रहे होते हैं वो बेसिकली, या तो ये ट्रेड टू डिप्लोमेसी एंड ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू आप रिलेशंस बनाए कंट्रीज के साथ, ये एग्जांपल हो सकता है। द फर्स्ट ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो टोटल होते हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो उनके फर्स्ट गोल के बारे में पूछा गया है। सो इट इज अबाउट पॉवर्टी एलिविएशन, गुर्बत को खत्म करना। अदर ऑप्शंस लाइक क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन, क्वालिटी एजुकेशन, या marine life are wrong options. Only option C is the correct option. The largest producer of solar energy in the world is, so solar energy को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला कंट्री कौन सा है? ऑप्शंस आर जर्मनी, ऑप्शन बी इज यूएसए, ऑप्शन सी इज रशिया, ऑप्शन डी इज पोलैंड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। The next question is, one barrel of petroleum is equal to. So one barrel of petroleum is equal to 42 US gallons. ये आप याद रख लें, 42 US gallons. The first woman to win the Nobel Prize was. So Mary Curie थी वो, जिनको ये नोबेल प्राइज मिला था 1903 में फिजिक्स पे, मेरी क्यूरी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू मेयर, हाइड्रोमीटर का आपको पता है
कि ये जो लिक्विड की ग्रेविटी होती है उसको मेयर करने के लिए यूज होता है। सो ऑप्शन बी, specific gravity of a liquid is the correct option. Other options like acidity of water, pollution of the water, and gravity of the milk are wrong options. Only option B is the correct option. So it is all from today, all from my side. Okay, we'll continue the series. If you are new in my channel, so please don't forget to subscribe, like, and share my content with your friends so that you people will never miss any video. और इफ यू वांट टू वॉच द कंप्लीट सीरीज, अगर आप पूरी कंप्लीट सीरीज ये जो मैंने पास पेपर जीके के पीएमएस के सॉल्व किए हैं देखना चाहते हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको दूसरी वीडियोज भी मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।